previous year question paper analysis videos, not only of 1 or 2 years, but from 2011 to 2021, all previous year question paper analysis videos must be watched, then only it is helpful. Otherwise it will not help 1 or 2 years. And in addition, your own technique should be developed. Means, suppose I am already sharing with you all the techniques as much as I can, but in exam there should be some another technique which I am not able to share, because there is no such type of question. But because of I am telling you how to apply the techniques, how to use your analytical ability, this and that, in exam like condition itself, at least five to six questions on your own you have to create the techniques and tricks. That is the actually the aim of covering this all the question papers. So in this way, previous year question paper analysis notes also will help you to get 20-30 questions repeated from that notes. And because of these techniques and all, your 40 to 50 marks will definitely hike, that is for sure. So let us start 2017 question paper. First question, I am using B set, so it will be different in your question paper. So check. The first question is, the object of Butler Committee of 1927 was, object of Butler Committee of 1927, what was the object? See, D option, there is improvement, improve, right? A option, there is a define. B option, there is define. मतलब there is no definition, but यहाँ पे फंक्शन बोल रहा है, बटलर कमेटी का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है। डिफाइन का, डिफाइन ए में डिफाइन, बी में डिफाइन आया है, इसका मतलब डिफाइन वाला लॉजिक तो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दो में से तो आंसर नहीं हो सकता है, राइट। सी में इम्पोज सेंसरशिप, इम्पोज है, लेकिन डी में क्या है, इम्प्रूव। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट, इफ देयर इज इनेबल्स, इम्प्रूव, मतलब कि यूजेस या गेन्स, और मतलब कि पॉजिटिव अगर बात हुई ना, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, so improved, therefore the answer is D. Otherwise Butler Committee is a static question, it is covered in somewhere in NCERT or somewhere, so it must be known, but otherwise improved की वजह से इसका आंसर D है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the term domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to domestic content requirement. See, first option only is saying developing solar power production in our country. See, solar power production, this is a green initiative, got it, green or something to renewable energy and all, so therefore A is the answer. B question, B option क्या है, granting licenses to foreign TV channels in our country. Why? What is the need? Already in our country itself there are many channels, no need. Exporting our food products to other countries, not necessary. ये मतलब कि इसका तो कोई लेना देना नहीं कि एक्सपोर्ट फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने का डोमेस्टिक कंटेंट से. एंड डी, परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सेट अप देयर कैंपसेस इन आवर कंट्री. सी, बी, सी एंड डी, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर सेइंग फॉरेन इन्फ्लुएंस, मतलब कि एक्सपोर्ट करो, फॉरेन इन्वॉल्व हो गया, फॉरेन टीवी चैनल्स को लाइसेंस दे दो, फॉरेन इन्वॉल्व हो गया. डी ऑप्शन में भी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को परमिट दे दो, फॉरेन. लेकिन ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, डेवलपिंग आवर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री. इसमें फॉरेन का कुछ भी नहीं किया कि फॉरेन से मंगवाओ, ये करो वो करो, डेवलपिंग इन आवर ओन कंट्री, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक कि तीन ऑप्शन में फॉरेन का इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन ए ऑप्शन में देयर इज नो फॉरेन इन्वॉल्व, देयरफॉर आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the nuclear security summit are periodically held under the aegis of United Nations. देखो, आई ऑलरेडी टोल्ड कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया ना ऑप्शन में, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग. तो यूनाइटेड नेशंस नाम आ गया, तो इसलिए दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. एंड सेकंड वाला क्या है, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यहाँ पे और इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल, दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम एक ही ऑप्शन में आ गए, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, राइट. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर ऑप्शंस में आता है ना, दैट ऑप्शंस आर डेफिनेटली करेक्ट. जैसे मिनिस्ट्री का नाम मैंने बोला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अगर नाम है ना, तो वो रॉन्ग है, राइट. I think some setting is not okay, because I don't know, it is blurring image, but let it be. So इसलिए इसका आंसर है डी, neither one nor two. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
Okay, I'm sorry, but clarity is not there in my, but it's okay, we will leave it. Question number 4: who among the following can join national pension system, NPS? Who can join? So first option, there is only resident Indian citizens only, so A is wrong. B, persons of age of 21 to 55 only is there, इसलिए B is also wrong. Fourth option, all central government employees including those of for armed force joining the services on or after 1 अप्रैल 2004. देखो यहाँ पे एक सटीक तारीख दी है, डेट दी है, डेट. हु कैन रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट? इसलिए डी इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि एग्जैक्ट डेट दिया है मतलब आपको हिंट दिया है कि हाँ ये रॉन्ग है, राइट. लेकिन डी सी ऑप्शन में देखो, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. देखो सी एंड डी दोनों ऑप्शन में ऑल वर्ड आया है, यहाँ पे ऑल वाला लॉजिक नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे डेट वाला लॉजिक लगाना है डी ऑप्शन में, कि हाँ एग्जैक्ट डेट दिया है मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन है. ऑल वाला लॉजिक लगाओ तो सी एंड डी ही इलिमिनेट होगा, और ओनली वाले लॉजिक से ए एंड बी भी इलिमिनेट होगा, तो क्या ई आंसर होगा, मतलब चारों में से तो एक आंसर है. तो ए एंड बी ओनली की वजह से इलिमिनेट किया, डी डेट की वजह से एलिमिनेट किया, सी इज द आंसर. गेटिंग माय पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 5: with reference to river Tista, consider the following statement. See, rivers, whatever river is coming na, तो all those rivers are covered in NCERTs. एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ना, तो रिवर पे जो भी क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर 2 और 3 क्वेश्चन आर डेफिनेटली देयर ऑन रिवर्स. तो वो क्वेश्चन कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं रहते, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए रिवर्स पे ही रहते हैं. तो देखो ऑप्शंस देखो. हाँ, फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली रिवर टिस्टा अच्छे से कवर किया है कि रिवर टिस्टा, तो थ्री ऑप्शन देख लो. रिवर टिस्टा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. अभी इतना तो आपको पता है कि रिवर टिस्टा की वजह से इंडिया एंड बांग्लादेश में इशू होता है, मतलब कि अगर बॉर्डर से बहता है तो वही इशू ही नहीं है, फिर बॉर्डर अच्छा बन गया. लेकिन इंडिया से बांग्लादेश में जा रहा है वो रिवर, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके, ना कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे नहीं जा रहा है बे ऑफ बंगाल पे. वो रिवर मतलब कि गंगा या ब्रह्मपुत्र वो ऊपर से जो आते हैं ना रिवर, उनको जाके मिलती है रिवर टिस्टा, इसलिए 3 इज रॉन्ग. और 3 रॉन्ग है तो भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बी, 2 ओनली इज द आंसर. और 1 में देखो, द सोर्स ऑफ रिवर टिस्टा इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम. देखो सेम ऐसा वर्ड आया ना, सेम वर्ड सेम, वो भी ऑप्शन रॉन्ग होता है. सेम, एग्जैक्टली सेम, मतलब कैसे नहीं होता कि एक ही रिवर का सेम सोर्स कैसे हो सकता है, फिर तो वो ब्रह्मपुत्र में ही जाएगा वो वाला पानी, राइट. सेम सोर्स कैसे होगा, एक ही रिवर का सेम सोर्स कभी नहीं होता है. तो इसलिए 1 इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड सेकंड क्या है, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन द सिक्किम एंड इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टिस्टा. तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ रिवर टिस्टा का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, क्या है, मतलब कि एनसीईआरटी में सारे रिवर्स कवर है, जितना हो सके लॉजिक से निकाल सकते हैं एलिमिनेट. अगर थर्ड वाला आपको लॉजिक पता चला ना कि बॉर्डर पे तो नहीं है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश में रिवर टिस्टा की वजह से झगड़ा होता रहता है पानी के ऊपर, तो अगर बॉर्डर से बहता है बे ऑफ बंगाल में जा रहा है तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए, राइट. इतना भी लॉजिक आपने लगाया तो भी आप आंसर कर सकते हैं बी, 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 6: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू. अभी इस क्वेश्चन में सेम आया, सेम मतलब इसमें आया था सेम की सोर्स सेम है, इसमें भी सेम आया. देखो सेम का मतलब कि कहा क्या होना है, मतलब सेम वाला लॉजिक सभी जगह अप्लाई नहीं होता कि सेम आया तो रॉन्ग है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम वाला लॉजिक था कि रिवर का सोर्स सेम नहीं हो सकता है, राइट. लेकिन इसमें क्या है, इन ट्रॉपिकल रीजन जिका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू. यहाँ पे देखो उस वायरस जिका वायरस डिसीज वायरस का नाम नहीं दिया. अगर वायरस का नाम देता तो कौन याद रखता कि जिका वायरस कौन से, या मॉस्किटो का नाम देते, सपोज यहाँ पे मॉस्किटो का नाम दिया होता तो डिफिकल्ट है याद रखने में. लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जस्ट सेम मॉस्किटो, आपको इतना पता होना चाहिए कि डेंगू और जीका सेम ही मॉस्किटो से फैलता है, उतना तो याद रख सकते हैं. मॉस्किटो का नाम डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है. इसलिए ऐसे जब होता है ना कि किसी चीज का नाम ना देते हुए किसी से सेम मॉस्किटो ऐसे दे दिया, मतलब कि जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू. इसकी जगह जीका वायरस डिसीज ट्रांसमिटो, यार डेंगू वाला मॉस्किटो है वही जीका फैलाता है, उतना आपको पता है क्या. तो इसलिए 1 इज डेफिनेटली करेक्ट. एंड सॉरी
सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिसीज इज पॉसिबल, पॉसिबल वर्ड आ गया, इसलिए बोथ 1 and 2 इज द आंसर, सी ऑप्शन 1 and 2, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिसीज इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी का पॉसिबल वर्ड आ गया, इसलिए इसका आंसर है सी 1 and 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखो हाँ अभी यहाँ पे देखो मैंडेटरी वर्ड, मैंडेटरी एक्सेप्शनल केस आ गया कि मैंडेटरी वर्ड आ गया फिर भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला पढ़ो पहले। एग मार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जब नाम आता है ना तो रॉन्ग होता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम आ गया, मतलब 2 इज डेफिनेटली रॉन्ग। फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स, अभी यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड आ गया, एक एक्सेप्शन है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मार्किंग है, तो वो एक लॉ टाइप है कि हाँ ये तो मैंडेटरी होना चाहिए, ऑटोमेटेड टायर एंड ट्यूब्स, मतलब कि रिस्क है, अगर फट जाता है तो लाइफ को रिस्क है, ऑटोमेटिव टायर एंड ट्यूब अगर फट गया चालू में तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, इसलिए मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी कहाँ कर सकते हैं, मतलब कि समझ में आ रहा है, मैंडेटरी वर्ड एक्सेप्शनली करेक्ट आ गया इधर, लेकिन अगर अपने लॉजिक लगा लिया मैंडेटरी वाला तो देर आर 1 or 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस, अगर आपने 20 क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी बोला है 20 क्वेश्चन आप अगर टेक्निक से सॉल्व करते उसमें से 15 श्योर शॉट करेक्ट आएंगे, 4 5 3 आपके गलत हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंडेटरी वाला लॉजिक लगा कि आप रॉन्ग कर सकते हैं, ना इधर 1 और 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का रोल क्या है तो वो आप गलत नहीं करोगे, मतलब कि फैक्चुअल की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गूगली डाल दिया, लेकिन ऐसे हर एक क्वेश्चन में लॉजिक फेल नहीं होता है, 1 2 3 क्वेश्चंस में होता है, यू शुड नॉट वरी कि सारे क्वेश्चन में अगर ऐसे उल्टा कर दिया, इट विल नॉट हैपन, डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे होता है, टेक्निक से आपके 20 क्वेश्चन टेक्निक से सॉल्व किया और 20 के 20 करेक्ट हो गए, वो होगा भी नहीं एंड वो जरूरी भी नहीं है, गेटिंग माई पॉइंट, तो ऐसे, लेकिन स्टैंडर्ड मार्क मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते थे। Next question, question number 18. What is the advantage of implementing the National Agricultural Market Scheme? National Agriculture Market Scheme. देखो डेफिनेशन है पहले में, इट इज अ पान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, इट इज अ पान इंडिया, इट इज वर्ड आ गया, मतलब ये डेफिनेशन हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का डेफिनेशन, इसलिए 1 इज करेक्ट। एंड सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइजेस कॉमेंसुरेट विथ क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड्स मतलब कि इट हेल्प्स, इट इनेबल्स, इट इम्प्रूव्स टाइप का वर्ड आ गया, इट प्रोवाइड्स, जस्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, नेशन वाइड मार्केट प्रोवाइड करता है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो मतलब कि क्वालिटी के हिसाब से प्राइस देता है, तो एक लॉजिकल स्टेटमेंट लग रहा है, इसलिए बोथ 1 and 2 ओनली इज द आंसर, 1 and 2 इज द आंसर, गेटिंग माई पॉइंट, इट प्रोवाइड्स आ गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसिडर दो, इट रीइटरेट्स, देखो रीइटरेट्स मतलब हेल्प्स टाइप का वर्ड है, रीइटरेट्स, तो जिस भी वर्ड के एंड में ES लगता है ना, जिसका बहुत ही वीक है, अगर रीइटरेट्स का प्रोवाइड्स का मीनिंग ही पता नहीं, तो जिस भी वर्ड के बाद ES प्रत्यय लगता है ना, ES सफिक्स, रीइटरेट्स ES आ गया एंड में, तो वो वाला स्टेटमेंट ऑलमोस्ट करेक्ट होता है जब मतलब कि एक्सट्रीम वर्ड कोई नहीं है, देखो इट रीइटरेट्स दैट इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, एग्रीमेंट का नाम है, आप समझ पा रहे हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन का नाम अलग है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन वगैरह अलग है, गेटिंग माई पॉइंट, तो आपको वो याद रखना है, आप बोलोगे यार ट्रिप्स आ गया इधर इंटरनेशनल है, दोहा आ गया इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया तो रॉन्ग होता है, लेकिन एग्रीमेंट्स, एजेंडा, कन्वेंशन, मतलब इस टाइप का अगर कुछ है प्रोटोकॉल तो वो डेफिनेटली करेक्ट होता है, वो याद रखना आप। एंड सेकंड वाला, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, अभी देखो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको अगर पता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये डिफिकल्ट है एलिमिनेट करना, इसलिए इसका आंसर है बोथ 1 and 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, according to wildlife protection act which of the animals cannot be hunted by any person except under some provision provided by law, ऐसे जब पूछते हैं ना कि कौन सा प्राणी आप इजीली मार नहीं, मतलब कि विदाउट
विदाउट मतलब कि विदाउट प्रोसीजर, मतलब कि जो प्रोसीजर है, देखो ये इंडेंजर्ड वगैरह के लिए पूछा है। तो सेकंड एंड थर्ड देखो, वाइल्ड ऐसे वाइल्ड बफेलो मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स है दोनों, तो उनको तो मार नहीं सकते, जंगली जानवर है, उनको तो मार नहीं सकते, उतना वाइल्ड लाइफ एक्ट है। और सेकंड एंड थर्ड में भी वाइल्ड वर्ड आ गया। लॉजिक अगर आप लगाओगे, आपको अगर उस एनिमल के बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक्ट का नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो सेकंड एंड थर्ड में वाइल्ड वर्ड आ गया, वाइल्ड, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफेलो। तो 2 and 3 इज डेफिनेटली करेक्ट, मतलब कि बी और डी में से आंसर है, ए एंड सी तो नहीं है, क्योंकि 2 and 3 डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। और 1 आपको बस चेक करना है कि घड़ियाल, तो घड़ियाल आपको एनसीईआरटी में या कहीं पे पढ़ के पता होगा कि इंडेंजर्ड एनिमल है, मतलब कि एम्फीबियन है घड़ियाल, तो उसको मारना भी अलाउड नहीं है, राइट। इसलिए 1, 2 and 3 इज द आंसर। गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is are true of the fundamental duties of an Indian citizen? फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, एक्चुअली दे आर को रिलेटिव टू फंडामेंटल राइट्स एंड द लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। नो, दीज आर वॉलंटरी, देयरफॉर नाइदर 1 nor 2। इसमें क्या लॉजिक बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होना है। देखो अभी अभी देखो ट्वेल्थ क्वेश्चन, राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एंड, तो देखो मतलब कि आपको इतना लॉजिक पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट ये आप याद नहीं रख सकते, तो हिस्ट्री में जो चीज़ें याद रखने में डिफिकल्ट है ना, वो करेक्ट होती है। एक्चुअली इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन 2 and 3 में से एक ही करेक्ट है, मतलब कि फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा एंड फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, राइट। तो दो में मतलब इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या लॉजिक बताओ, इसका आंसर है 1 and 3। तो सेकंड, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा, आई थिंक पेरियार वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। पेरियार मतलब कि रामास्वामी नायकर, वो थे शायद मद्रास महाजन सभा के फाउंडर, राइट। तो लेकिन इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो लेकिन इस क्वेश्चन से आपको गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी ने क्या किया था, बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट राधाकांत देव थे, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, तो फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा कौन था, और गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी उन्होंने क्या क्या किया था काम, वो चेक करना है, वो सर्च करना है, वो नोट्स में आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following objective is not embodied in the preamble of constitution of India? preamble देखो, preamble तो डायरेक्ट रट लेना है, मैं आपको सुनाता हूँ। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and an opportunity, uh, justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, liberty and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and integrity of the nation, unity and integrity of the nation. We hereby ऑन दिस 20, ऐसे कुछ है, मतलब कि मुझे पूरा रट लिया, अभी पूरा सुनाऊंगा तो आपको बोर हो जाएगा, लेकिन रट लिया है बहुत बार लिख लिख के, क्योंकि आपको प्रियम्बल पे 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप रट लेना, आप बार बार लिख लेना, डेट कहा, कब कमेंट्स किया था, वगैरह वगैरह। तो लिबर्टी में क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमिक किस में है, जस्टिस में है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो इसलिए प्रियम्बल अगर रटा हुआ है तो 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विथ रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये देखो सेकंड वाला रिकमेंडेशन वर्ड आ गया, रिकमेंडेशन, इसलिए डेफिनेटली करेक्ट है रिकमेंडेशन। और 1, क्यों क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेटअप ज्वाइंटली, तो इसे ज्वाइंटली वर्ड जब आता है ना, ज्वाइंटली की कोई ज्वाइंटली कुछ चीजें कर रहे हैं कि हाँ ज्वाइंटली कर रहा है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं होना चाहिए, मतलब कैसे आया कि दिस इनिशिएटिव ज्वाइंटली डन बाय दिस एंड दिस, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला लॉजिक लगाना है कि हाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूशन का नाम है तो रॉन्ग है, लेकिन ज्वाइंटली वर्ड आ गया और कुछ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस की बात हुई है ना, तो वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है।
QCI इज सेटअप ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री, मतलब कि ज्वाइंट इनिशिएटिव अगर है ना इंडिया में कोई, तो वो डेफिनेटली करेक्ट होता है। एंड सेकंड में तो देखो रिकमेंडेशन वर्ड आ गया, इसलिए सेकंड इज आल्सो करेक्ट, इसलिए बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया? स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर्पज क्या है? थर्ड डायरेक्टली पढ़ लो, टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स। देखो यंग यंग ही क्यों, मतलब कि यंग की डेफिनेशन क्या हो गई, 10 साल का, 15 साल का, मतलब कि यंग एंटरप्रेन्योर्स ऐसे क्यों? टू इनकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लिख सकते ना, तो वो था। लेकिन यंग क्यों है? यंग मतलब क्या, बुढ़े लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते? कोई रिटायर होके अगर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, स्मॉल स्मॉल बिजनेस, तो वो नहीं है अलाउड। मतलब कि आपको घंटी बजना चाहिए कि यंग ही क्यों, ओल्ड वालों को क्यों नहीं, राइट? टू सेटअप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, और पर्टिकुलरली वर्ड आ गया। देखो बिजनेस मुझे कुछ कहीं पे भी करना है, सपोज रूरल में ही क्यों, समझ में आ रहा है? इसलिए 3 इज रॉन्ग। 3 रॉन्ग है तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1 and 2 ओनली। और देखो 1 and 2 दोनों में स्मॉल वर्ड आ गया, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल क्वेश्चन में स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्ड आ गया था, तो उस लॉजिक से भी 1 and 2 इज डेफिनेटली करेक्ट एंड 3 इज रॉन्ग, बिकॉज यंग का क्या मीनिंग हो गया, और पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज में ही क्यों। क्वेश्चन नंबर 16, with reference to Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development, consider the following statements. देखो, the first APM CHUD was held in India in 2006 on the theme। जब थीम देता है ना यूपीएससी, थीम, तो वो कितने सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, कितने सारे थीम्स रहेंगे, तो वो रॉन्ग थीम होता है। थीम मोटो वगैरह है ना, तो वो रॉन्ग होता है थीम, राइट? थीम, इसलिए 1 इज रॉन्ग। एंड सेकंड क्या है, इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस इन पार्टनरशिप विद एडीबी, अपेक एंड आसियान। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ गए और ऑल भी वर्ड आ गया, इसलिए 2 इज ऑल्सो डेफिनेटली रॉन्ग, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2 इज द आंसर। देखो थीम डेट भी दिया, फर्स्ट एपीएम सीएचयूडी वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2006, मतलब कि ईयर पर्टिकुलर याद रखना है और थीम भी याद रखना है। हु कैन रिमेंबर दिस मच बिग बिग थीम्स? इसलिए इसका आंसर है नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 70, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। देखो अभी यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्ड है ना, वो कीवर्ड है, सुपीरियर वर्ड की नहीं। कीवर्ड आपको पहचानना है क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन को पकड़ के आपको, अगर क्वेश्चन के किसी वर्ड आप बोलोगे, किसी ने मुझे कल मैसेज किया कि सुपीरियर वर्ड क्वेश्चन में भी है और सी ऑप्शन में सुपीरियर वर्ड आ गया सी, इसलिए सी इज द आंसर। ऐसे नहीं होता है गाइस। कीवर्ड आपको ढूंढना है। क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? डेमोक्रेसी कीवर्ड है, सुपीरियर इज जस्ट अनदर एडिशनल वर्ड, लेकिन डेमोक्रेसी इज अ कीवर्ड। तो सी ऑप्शन में सुपीरियर इंडिविजुअल डायनामिज्म, मतलब कि इंडिविजुअल वर्ड आ गया। डेमोक्रेसी इंडिविजुअल तो नहीं हो सकती, इसलिए सी रॉन्ग है। तो बी भी रॉन्ग है, मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। मतलब कि डेमोक्रेसी का इतना बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। देखो मेन एंड वुमेन, ही ऑब्लिक सी, ऐसा अगर आता है ना, तो वो डेफिनेटली करेक्ट होता है। मेन वुमेन की इक्वालिटी की बात हुई है उस स्टेटमेंट में, राइट? इसलिए ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, with reference to which of the following is the most likely consequence of implementing the unified payment interface? बी ऑप्शन देखो, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस, टोटली, इसलिए रॉन्ग। सी, एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, ड्रास्टिकली, वो भी एक्सट्रीम वर्ड है, इसलिए रॉन्ग। डी ऑप्शन, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। वेरी कितना इफेक्टिव होगा? विल बिकम इफेक्टिव होता तो ठीक था, लेकिन वेरी इफेक्टिव की वजह से वो भी रॉन्ग है। ए वाला ऑप्शन देखो, मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। पेमेंट वर्ड आ गया क्वेश्चन में, यहाँ पे पेमेंट वाला क्वेश्चन में जो पेमेंट वर्ड है ना, वो कीवर्ड है, और ए ऑप्शन में भी पेमेंट वर्ड आ गया, इसलिए इसका आंसर है ए। तो आई होप यू आर गेटिंग न्यू टेक्निक्स एंड न्यू ट्रिक्स। थैंक यू सो मच, एंड अगले वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।